So, introducing the topic. Organized violence directed against members of the Dalit and Adivasi communities are a way to maintain the social order of society. The modernization and development that we witness in India is only for the babus, landlords, and capitalists. And when people from lower caste demand their share in resources and assert their political rights or even try to vote independently or practice their cultural activities, they experience caste based violence. Untouchability is still practiced in the country. However, people in policy and bureaucracy deny this very ground reality, resulting in policies and administrations that are structurally biased. For example, the West Bengal government said that untouchability is not practiced there, whereas a survey carried out in 2010 in a village of Medinipur district contradicts what the West Bengal government says. It shows that untouchability is practiced by caste Hindus as well as Muslims on the Dom caste, which comes under the SC category. These kinds of narratives in the social consciousness, along with casteist ruling parties in power, never implement laws against the caste system seriously. Recently, we witnessed the ruling government bulldoze the House of Minorities. However, this phenomenon is not new. Dalits and Adivasis have long been victims of the bulldozer. Adivasis have been displaced from their land and lost their homes in the name of developmental projects, while dominant castes have bulldozed the homes of Dalits, all to keep them subdued and subordinate and to hold the authority to exploit them. In this age, old caste relations in Hindu society are getting disturbed by the constitutional rights given to Dalits and Adivasis and their political consolidation. The frequency and intensity of violence on lower castes is an offshoot of desperate attempts by the upper caste groups to uphold the social order. This social order is primarily based on plundering and exploitation of the labor of the DBA community, and violence by upper caste groups protects their entrenched status in the social order against the process of upward mobility and attempts to change the Brahminical social order by the lower caste groups. The violence takes brutal forms and turns into acts of atrocities against a whole group of people, such as massacre, rape, burning of houses, and social boycott, which are intended to block their access to basic necessities and services. Various laws have been passed over the course of history and to protect SCs and STs. Some of them are the Protection of Civil Rights Act, Scheduled Castes and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act, Employment of Manual Scavenger and Construction of Dry Latrines Prohibition Act, Bonded Labor System Abolition Act, Devdasi System Prohibition of Dedication Laws, enacted in states like Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra to prevent sexual exploitation of lower caste women. Now we come to see the data on SC and SC atrocities. We have witnessed a year-on-year rise in the number of cases. From in 2018, it was 42,539 cases. And by 2020, it was 50,268 cases. So, and in the cases convicted, that is, in the cases that completed trial during that year, the number of cases convicted were in 2018, it was 3,420, and in 2019, it was 4,007. In 2020, it was 3,241. From all this, we can see that there is an increase in crimes against SCs and STs, which shows continuing and worsening patterns of caste violence. The sheer volume of cases suggests caste remains entrenched in Indian society. The data indicates structural problems with dominant caste impunity and systemic discrimination that still are widespread, especially in access to resources, land, justice, and dignity. Legal provisions most often do not translate into real protection, and the dominant caste enjoys systemic protection that reveals biases within the state machinery. Very few people are convicted in the cases registered, most are under trial, and many are acquitted. And all this when we know that under-reporting of Atrocities Act cases is a very common phenomenon, and large number of cases of atrocities go unregistered, mainly because of reluctance on the part of police officials to entertain complaints. In addition, there are delays in investigation, collusion with offenders, and manipulation of witnesses and evidence, all of which contribute to reducing the effectiveness of legislation on atrocities. So now I'll be introducing the speaker,
Rajat Kalsin is an advocate who has frequently represented Dalits in Haryana who have faced caste discrimination and violence by members of oppressor castes, including in cases of gang rapes, killings, and house burnings. He has fought the Mirchpur case, one of the most horrific cases of caste atrocities in Haryana against the Valmiki community by Jats of the village when Congress was in power in the state government and Bhupender Singh Hooda, a Jat leader, was the CM. He has also fought the Batla case, where around 500 Dalit families were socially boycotted by caste Hindus. Additionally, he has fought against casteist remarks by celebrities and political leaders like Yuvraj Singh, Munmun Datta, and Bal Thackeray. So, with this, we start our session. तो पहला प्रश्न है कि ये हरियाणा के गांवों और शहरों में रहने वाले दलितों के जीवन और काम के बारे में बताएं। क्या गांवों के दलित जमींदारों के लिए काम करते हैं या गांव को छोड़ के शहरों में काम करने जाते हैं, और वे क्या काम करते हैं, साथ ही शहरों में रहने वाले दलित क्या काम करते हैं। तो बेसिकली ऑक्यूपेशन के बारे में बताएं। देखिए, हरियाणा में जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं वो टोटल पॉपुलेशन का 20% है और जाट कम्युनिटी जो है वो भी 20-21% के करीब है। तो जहाँ तक दलितों के ऑक्यूपेशन की अगर हम बात करें तो दलितों के पास जो रोजगार है, दलितों का जो काम है, जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो जो जमींदार हैं, जो जमींदार का मतलब जिन लोगों की पास खेती की जमीनें होती हैं उनके खेतों में सीरी का काम करते हैं। हमारे यहाँ लोकल भाषा में सीरी बोलते हैं। सीरी का मतलब खेती हर मजदूर का काम करते हैं और सफाई का काम करते हैं। सिंपल मजदूरी आप कह सकते हो कि कंस्ट्रक्शन, जो हाउस कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम होता है। शहरों में जो है प्राइवेट जॉब्स, छोटी प्राइवेट जॉब्स और सफाई कर्मचारी, और महिलाओं की बात करें तो महिलाएं जो अमीर लोग होते हैं उनके घरों में काम करने का, झाड़ू पोछा करने का, इस तरह का काम करती हैं। गांव की महिलाएं भी मजदूरी करने का काम करती हैं। खेतों में जो खेती और मजदूरी के तौर पर वो भी वहां पर काम करती हैं। और कुछ परसेंटेज ऑफ एससी कम्युनिटी जो है वो सरकारी नौकरी में भी है। उसमें 4th क्लास जॉब भी है, 3rd क्लास, 2nd क्लास और गजेटेड ऑफिसर्स भी हैं। लेकिन जो गजेटेड ऑफिसर्स हैं या क्लास बी के ऑफिसर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं जातिवाद और एट्रोसिटी, डिस्क्रिमिनेशन से पीड़ित हैं। मतलब आप ये कहिए कि हरियाणा में, पंजाब में जो लोएस्ट, जो मार्जिनल जो लोग हैं एससी कम्युनिटी के, वो उस वहां से लेकर और आईएएस ऑफिसर तक भी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन और एट्रोसिटी से पीड़ित है। तो बड़ी नौकरियां हमारे पास नहीं है। बड़ी नौकरियां हैं हमारे पास तो बड़ी नौकरियों में हम लोगों को जो क्रीमी पोस्टें हैं वो क्रीमी पोस्टें नहीं दी जाती। जैसे डिस्ट्रिक्ट के डीसीज हैं, एसपीज हैं, डीजीपीज हैं, इस तरह की पोस्टें हम लोगों को नहीं दी जाती। प्राइवेट कंपनियों में हम लोगों को नहीं लिया जाता। प्राइवेट कंपनियों में हमको 4th क्लास के तौर पे लिया जाता है। या फिर हमको, हमारी जो एससी कम्युनिटी का बहुत बड़ा एक पार्ट है वाल्मीकि कम्युनिटी, जो शहर की सफाई है, नगर परिषद में कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, उनसे गंदगी के काम कराए जाते हैं। सीवर में बिना सेफ्टी मेजर्स के उनको घुसाया जाता है। अक्सर खबरें आती है कि उनकी मौतें हो जाती हैं। और बहुत सारे केसेस, अगर हम लेबर क्लास की बात करें एससी कम्युनिटी के, और जो कंस्ट्रक्शन के काम में लगे हुए हैं, उन लोगों से काम करा लिए जाते हैं। उन लोगों को उनकी पूरी मजदूरी भी नहीं दी जाती है और वो कभी लेबर कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, कभी पुलिस थानों के चक्कर काट रहे हैं। तो इस तरह की जो सामाजिक स्थिति है काम धंधे के मामले में एससी कम्युनिटी के हरियाणा में। So, दूसरा प्रश्न है कि हरियाणा में दलित समाज का जो सोशल लाइफ और सोशल रिलेशंस है, जो सामाजिक संबंधें हैं, उनके बारे में बताएं। क्या उनमें भाईचारा और यूनिटी का भावना है या समाज में चल रहे जातिगत भेदभाव को छिपाने का ये एक दिखावा है।
देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जहां तक भाईचारा की बात है, सामाजिक रिलेशनशिप की बात है, तो पूरे इंडिया में एक तरह के हालात हैं। हरियाणा में भी वैसे ही हैं। हमको सैकड़ों सालों से चौथे दर्जे का नागरिक माना गया है, और हम चाहे बिजनेसमैन बन जाएं, चाहे आईएएस या आईपीएस अधिकारी बन जाएं, हम चौथे दर्जे के नागरिक ही रहते हैं। वो हमको उसी नजरिए से देखते हैं कि यू आर शेड्यूल कास्ट। तो वो आपसे कास्ट पूछेंगे, अरे आप किन में हो? हम कहेंगे मैंने अच्छे कपड़े डाले हुए हैं, और मैं गुड लुकिंग हूँ, मैं लग रहा हूँ जैसे किसी सवर्ण ऊंची जाति का हूँ। लेकिन वेरिफिकेशन जरूरी है सवर्ण जातियों के लिए कि हाँ इसकी कास्ट क्या है। जैसे ही उनको पता चलता है कि हाँ इसकी कास्ट क्या है, कि हाँ मैं चमार जाति से हूँ, मैं धानक जाति से हूँ, वाल्मीकि जाति से हूँ, एससी कम्युनिटी से हूँ, तो बोलेंगे अच्छा ओहो कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ। तो इस तरह का वो एक रिएक्शन देते हैं। और जहां तक भाईचारे की बात अगर हम करें, सोशल रिलेशनशिप की बात करें, गांवों में एक भाईचारा नाम का वर्ड बहुत यूज होता है हरियाणा में। भाईचारा का एक्चुअल मीनिंग तो ये है कि गांव में सारे भाई की तरह रहें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के सुख दुख में काम आए। लेकिन हरियाणा के गांव में जो डोमिनेंट कम्युनिटी है वो जाट है, मेनली जाट है। उसके बाद गुजर है, उसके बाद ब्राह्मण है, और फिर कुछ गांव में बैकवर्ड क्लासेस भी हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि बैकवर्ड क्लासेस भी हम लोगों के साथ इस तरह ही बिहेव करती हैं जिस तरह ऊंची जाति के लोग करते हैं। तो जब तक आप उनकी हर बात को सुन रहे हैं, उनकी गाली गलौज को सुन रहे हैं, आप लोगों को नहीं पता होगा, हो सकता है पता भी हो कि हरियाणा के गांव में एससी कम्युनिटी के लोगों को उनके नाम से, नाम की जगह उनकी कास्ट के नाम से बुलाया जाता है। जैसे ये चमार का है, ये धानक का है, ये वाल्मीकि है, ढेड है। गालियां भी यूज होती हैं, ढेड है, छोटी जात है, नीची जात का है, गिंडल है, जलील है, इस तरह के शब्द उन लोगों के लिए यूज किए जाते हैं। तो अगर, और जो छोटी मोटी एट्रोसिटी है, जाति सूचक गालियां बकना, उनको उनके हाथ से हुक्का छीन लेना, उनको बराबर में ना बैठने देना, उनकी उनके जो छोटे मोटे राइट्स हैं वो उनसे स्नैच करना, इस तरह की छोटी मोटी एट्रोसिटी तो उनके साथ चलती ही रहती हैं। जिन जो एससी कम्युनिटी के जो हमारे लोग हैं हरियाणा में, उनकी जीवन की नियति एक तरह से बन चुकी है। जब भी कोई बड़ी एट्रोसिटी होती है या छोटी एट्रोसिटी के बारे में भी हमारे लोग आवाज उठाते हैं, तब भाईचारा वर्ड का बड़ा तगड़ा यूज होता है। जैसे कि भाटला गांव में हमको नलके पर पानी भरने से रोक दिया गया, और जब पानी भरने से रोक दिया गया ये कह के कि पहले बड़ी जाति वाले भरेंगे फिर तुम भरोगे। हमारे लड़कों ने विरोध किया क्योंकि वो स्कूल कॉलेज गोइंग लड़के थे, और उन्होंने जब ऐतराज किया और ये कहा कि सब बराबर हैं, तो उसके बाद उनको बुरी तरह मारा पीटा गया, और भी फोन करके गुंडे बुलाए गए, उनके चोटें मारी, उनको लहूलुहान कर दिया। और जब हमारे लड़कों ने एफआईआर दर्ज कराई, तब फिर भाईचारा वर्ड का यूज हुआ। तो गांव के जो बड़ी कास्ट के लोग थे उन्होंने कहा कि गांव में भाईचारा बना के रखना है। अगर आप एफआईआर रजिस्टर कराओगे, इनको जेल भिजवाओगे बड़ी कास्ट के लड़कों को, तो भाईचारा खराब हो जाएगा। दूसरा, एक भाईचारे के पैरेलल एक वर्ड और यूज होता है, गाम राम। मतलब गांव की ओपिनियन को राम के बराबर समझाता है, राम की वाणी के बराबर समझा जाता है, ऐसा ये कहते हैं। और उन्होंने ये कहा कि भाई गाम राम का फैसला है कि तुम केस वापस ले लो। गाम राम का मतलब जो गांव की डोमिनेंट कम्युनिटी के लोग हैं वो जो फरमान सुनाएंगे, दैट इज कॉल्ड गाम राम। और यही भाईचारा है। आप बड़ी कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ एक्शन लोगे, अपने अधिकारों की मांग करोगे, तो गाम राम भी नाराज होगा, भाईचारा भी खराब हो जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ भाईचारा जो है वो हरियाणा के गांव में होता है। जब तक आप उनकी गुलामी स्वीकार करते रहते हैं, जब तक आप अपनी गर्दन नीचा करके चलते हैं, जब तक आप उनकी गालियां सुनते रहते हैं, तब तक तो भाईचारा मेंटेन रहता है। लेकिन जैसे ही आप मारपीट के खिलाफ, जाति सूचक गालियों के खिलाफ, मर्डर के खिलाफ, रेप के खिलाफ, छेड़खानी के खिलाफ, सोशल बॉयकॉट के खिलाफ, अगर आप पुलिस में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तब भाईचारा खराब हो जाता है, गांव की सामाजिक रिलेशनशिप खराब हो जाती है, बरसों पुरानी मनुवादी व्यवस्था खराब हो जाती है। और फिर सोशल बॉयकॉट के फरमान होते हैं, उनको गांव से निकालने के फरमान जारी होते हैं। और इसी तरह का
जो भाईचारा और सोशल रिलेशनशिप है वो शहरों में भी है। हालात ये है कि हमारे आईएएस अधिकारियों को, हमारे एचसीएस अधिकारियों को, हमारे कर्मचारियों को, बाबू लोगों को अपनी नौकरी पूरा करने के लिए सिर नीचे करके नौकरी करनी पड़ती है, और जो उनके हायर ऑफिसर्स हैं, जो ऊंची जाति के लोग हैं, उनकी आउट ऑफ वे जो मांगे होती है, इलीगल डिमांड्स होती है, वो सभी पूरा करनी होती है। और महिलाओं के मामले में तो स्थिति और भी बदतर है। कार्यस्थल पर यौन हिंसा की बात करें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भाईचारा है, सोशल रिलेशनशिप है, वो जब तक ये अच्छा है, जब तक आप उनकी सारी बातें मान रहे हैं, सिर झुका के चल रहे हैं, उनकी एट्रोसिटी स्वीकार कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। अगर आप अपने राइट्स की मांग करते हैं, अपने अत्याचारों के खिलाफ पुलिस से एफआईआर की मांग करते हैं, अदालत से सजा की मांग करते हैं, तो एकदम ये सारी की सारी चीजें स्पॉइल हो जाती हैं। और मोर ओवर जो हमारे जो विक्टिम्स हैं, चाहे वो मर्डर का हो चाहे रेप का, उनकी मदद करने के लिए जो लोग आते हैं, चाहे मैं हूं और मेरे जो साथी हैं, जो विसल ब्लोअर का काम कर रहे हैं, एक्टिविस्ट का काम कर रहे हैं, उन लोगों को टेररिस्ट की तरह ये लोग डील करते हैं। और यहाँ पर एक माफिया की तरह एक काम हो रहा है, जिस उस माफिया में सरकार शामिल है, राजनीतिक सत्ता में बैठे लोग शामिल है, पुलिस उन चीजों में शामिल है, और जो बड़ी जाति के लोग हैं उन लोगों में वो लोग शामिल हैं। ये सारे के सारे इस माफिया का काम ये है कि एट्रोसिटी की घटनाओं में जो रिपोर्टिंग होती है, कंप्लेंट्स होती है, उन लोग कंप्लेंट्स को फेलियर करना, दबाना, और किसी न किसी तरह से गवाहों को तोड़ना, और पूरे SC ST एक्ट को कामयाब ना होने देना। तो एक ये माफिया काम करता है। हाईएस्ट लेवल से लेकर लोएस्ट लेवल तक के जो हाई कम्युनिटी के लोग हैं, वो इसमें ऑफिसर्स हैं, पुलिस अधिकारी है, एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी है, राजनीतिक लोग हैं, मंत्री हैं, संतरी है, सब इसमें मिलकर अपना योगदान करते हैं, ताकि SC कम्युनिटी के लोग अपने राइट्स की तरफ देख भी ना पाए, एट्रोसिटी के बारे में बोल भी ना पाए। जो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने उनको राइट्स दिए हैं, उनको वो अवेल ना कर पाए। तो अब हम आपसे मिर्चपुर हिंसा और बाटला केस के बारे में पूछना चाहते हैं। दोनों केसेस में दलितों के खिलाफ हिंसा और सामाजिक बहिष्कार, जो सोशल बॉयकॉट कहा जाता है, वो कौन सा कम्युनिटी उसके पीछे था, और साथ में ये जो कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज के मामले होते हैं, उनमें पुलिस और कोर्ट्स और जुडिशरी का क्या रोल होता है? देखिए, मैंने आपको एक जस्ट अभी एक बात बताई थी कि अगर आपके साथ कोई घटना होती है, इवन मिर्चपुर की घटना भी आपके साथ, मिर्चपुर में आपके बारे में आपको पता होगा कि एक कुत्ते को भौंकने को लेकर हमारे वाल्मीकि कम्युनिटी के 2 बुजुर्गों की पिटाई हुई, उनको चोटें मारी गई, और ये 19 अप्रैल का मामला है। और वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट रजिस्टर की, एफआईआर दर्ज कराई। मिर्चपुर में क्या अंतर है? एफआईआर रजिस्टर होने के बाद गांव के लोगों ने, मिर्चपुर गांव के लोगों ने, मिर्चपुर गांव के वाल्मीकि कम्युनिटी के लोगों को कहा हमारे खिलाफ एफआईआर वापस लो। उन्होंने वापस नहीं। 20 तारीख को एफआईआर हुई। 20 तारीख को गांव के जाट कम्युनिटी के लोगों ने पंचायत की गांव के चौपाल में। उसमें योजना बनाई गई, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रची गई, और 21 को गांव की जो वाल्मीकि कम्युनिटी की बस्ती है वो फूक दी गई। एक पिता पुत्री को जिंदा जला दिया गया। 50 से अधिक घर फूक दिए गए, लोगों के हाथ पैर तोड़े गए। डेड बॉडीज के सामने जो वहां के आरोपी जाट कम्युनिटी के लोग थे, 1500 की संख्या में थे, उन्होंने नंगा नाच किया। और भाटला में क्या हुआ? भाटला में हमारे लोगों लड़कों ने एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने वही बात की, एफआईआर वापस लो, हमने नहीं ली। तो उन्होंने मिर्चपुर जैसा कांड तो नहीं किया, लेकिन ये कह दिया कि ये वाल्मीकि कम्युनिटी के या चमार कम्युनिटी के लोग जो हैं, ये गांव राम की बात नहीं मान रहे हैं, भाईचारे को खराब कर रहे हैं, इनका बॉयकॉट कर दो। इनसे कोई ताल्लुकात नहीं रखेगा, कोई दुकानदार सामान नहीं देगा, कोई डॉक्टर नहीं या कोई इनको सर्विसेज नहीं देगा। तो उनको बॉयकॉट कर दिया। आज 7 साल हो गए, वो केस चल रहा है। SC कम्युनिटी के लोगों का सोशल बॉयकॉट किया गया। मिर्चपुर कांड में स्टेट की पूरी मशीनरी
पुलिसिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और चीफ मिनिस्टर, डीजीपी सब ये चाहते थे कि एनी हाउ इस मामले में कंप्रोमाइज हो जाए। जो जाट कम्युनिटी के लोग, जो क्रिमिनल को किसी ना किसी तरह बचा लिया जाए। जो 20% जाट वोट है, सरकार चाहती थी कि अगर हमने इनके खिलाफ एक्शन ले लिया, ये जेल में चले गए, तो 20% वोट हमसे छिटक जाएगा। ठीक है, तो इस चीज के लिए मिर्चपुर कांड में, और एक वो बहुत बड़ी चीज ये भी थी कि मिर्चपुर कांड में जो आरोपी थे जाट कम्युनिटी से थे, उस टाइम चीफ मिनिस्टर भी जाट कम्युनिटी से थे और डीजीपी, एसपी, डीसी वगैरह सब जाट कम्युनिटी से थे। तो सब लोगों के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी की बजाय अपनी जात से वफादारी बेहद जरूरी थी। ये जो पुलिस में बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये वर्दी पहनते हैं, इनके स्टार लगते हैं, इनको कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेनी पड़ती है कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, हम किसी कास्ट के आधार पर, किसी जाति के आधार पर, किसी धर्म के आधार पर, कलर के आधार पर, जेंडर के आधार पर, एरिया के आधार पर किसी से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। लेकिन हरियाणा में क्या है, अगर आप जाट जाति के हो और आप कितना ही बड़ा क्राइम करके आए हो, तो आपको बचाने की कोशिश की जाएगी, सरकार द्वारा भी, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा भी और पुलिस द्वारा भी। पुलिस में 80% जो क्रीमी पोस्ट पर पुलिस ऑफिसर्स तैनात हैं, वो जाट कम्युनिटी से हैं। चौकी इंचार्ज, एसएचओज, डीएसपीज, एसपीज, डीजीपी और बड़े अधिकारी सभी जाट कम्युनिटी से वो पोस्टें भरी गई हैं। तो ये लोग जो है, ये अपनी कास्ट के क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। दूसरा, जो पुलिस है, सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है और इवन कोर्ट्स हैं, ये लोग भी एक तरह के पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। SC/ST एक्ट में जो कम्युनिटी में जो कंप्लेंट रजिस्टर कराई जाती है, उस कंप्लेनेंट को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। उसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि ये SC/ST में भाई आजकल मुआवजा मिलता है, मुआवजे के लालच में जो है ये झूठी FIR रजिस्टर करा रहे हैं, इनको पैसा चाहिए इसलिए झूठी केस दर्ज करा रहे हैं। उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कॉम्प्रोमाइज के लिए। और सबसे बड़ी बात, जजों के मुंह से भी ये बात सुनने को मिलती है कि SC/ST एक्ट का मिसयूज हो रहा है और SC/ST एक्ट के 90% केस झूठे रजिस्टर कराए जाते हैं। तो जब इस तरह की मानसिकता जुडिशियल ऑफिसर्स की हो, पुलिस ऑफिसर्स की हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की हो, तो क्या आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आप लोगों को न्याय मिलेगा? जुडिशरी के रोल के बारे में, मिर्चपुर में जुडिशरी के रोल के बारे में मैं आपको बताऊं, मिर्चपुर में जुडिशरी ने, जो हरियाणा की जुडिशरी थे, मिर्चपुर मामले में हरियाणा की जुडिशरी ने हाथ खड़े कर दिए। ड्यूरिंग हिसार में जो ट्रायल हो रहा था, ड्यूरिंग ट्रायल मेरे ऊपर अटैक किया गया खाप पंचायत के मेंबर्स द्वारा कोर्ट प्रेमिसेस में। जज साहब को बताया, जज साहब ने कहा कि वकील साहब यहाँ तो ऐसा ही होगा, आप इस केस को ट्रांसफर करा लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से हमने केस को ट्रांसफर कराने की मांग की, तब जाकर इस केस में हमको जस्टिस मिला। अदरवाइज हरियाणा में हमको अगर ये ट्रायल हरियाणा में चलता तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि सभी के सभी आरोपी इसमें बरी होने थे, बाइज्जत बरी होने थे। और जो मिर्चपुर के प्राइवेट वकील थे, उन्होंने उनका डिफेंस पता है आप लोगों को क्या था? उन्होंने कहा कि जाट कम्युनिटी के लोगों ने यहाँ पे आग नहीं लगाई है बस्ती में, ये तो पड़ोस के एक मंदिर में आग लगी थी। वो मंदिर की आग जो है तेज हवा की वजह से फैलकर मिर्चपुर की वाल्मीकि बस्ती में आ गई, उसकी वजह से आग लग गई। तो ये इस तरह के इन लोगों के डिफेंस थे। और अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करती, केस को ट्रांसफर नहीं कराया जाता, तो आज बाइज्जत बरी हो जाते। भाटला केस में, भाटला केस में जुडिशरी की जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में का मैं एक आपको घटना बताऊंगा कि जैसा कि आपको पता है कि SC/ST POA एक्ट जो है, उसमें सेक्शन 18 है, पहले 18 था, अब 18A हो गया है। उस 18 में ये कहा गया था कि सेक्शन 438 ऑफ CRPC शैल नॉट अप्लाई ऑन दिस एक्ट। तो
इसके बावजूद, एक कानून होने के बावजूद, भाटला सोशल बॉयकॉट केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट द्वारा एक आरोपी को स्ट्रेटवे एविडेंस होने के बावजूद भी एंटिसिपेटरी बेल दे दी गई। और जब हम हाई कोर्ट गए उसके रिवीजन में कि सेशन कोर्ट ने इसमें गलत तरीके से बेल दिए, कानून के खिलाफ जाके बेल दिया, तो उसमें सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट ने उस रिवीजन को दूसरे तरीके से घुमा दिया। उन्होंने वहां के एडवोकेट जनरल को कहा कि ये तो सोशल बॉयकॉट का मामला बड़ा खतरनाक है, इसमें तुरंत एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जाके मामले को रिजोल्व करें। एसडीएम को भेजा गया, डीसी को भेजा गया, लेकिन उनकी कोशिशें कामयाब नहीं हुई। हमारे लोग पूरे लड़ाई लड़ने के मूड में थे, भाईचारे से, गाम राम से। उन्होंने एसडीएम के, डिप्टी कमिश्नर के लालच नहीं माने, उनकी धमकियां नहीं मानी। और उस मामले में सेशन को, जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, उस मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो हमने रिवीजन डाली थी उस रिवीजन की मेरिट पर बात तक नहीं की। मेरिट ये थी, हम चाहते थे कि सेक्शन 18 का जो वायलेशन किया गया है सेशन कोर्ट द्वारा, उस पर आप अपनी ओपिनियन दे, कोई फैसला दें, लेकिन उस पर बात ही नहीं की गई। मोर ओवर, इस मामले में जो SC/ST एक्ट का सेक्शन रूल 5 है और सेक्शन 4 ऑफ SC/ST एक्ट है, जिसमें पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की ड्यूटियां बताई गई हैं। सेक्शन 4 में क्या ड्यूटी बताई गई है कि फर्स्ट ऑल ऑफ यू हैव टू रजिस्टर FIR ऑन द कंप्लेंट ऑफ SC मेंबर ऑफ SC एंड ST, और उसके बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 60 days यू हैव टू प्रेजेंट फाइनल रिपोर्ट बिफोर कोर्ट। लेकिन हमारे जो सोशल बॉयकॉट के जो कंप्लेंट्स थी, उस पे ना तो रूल 5 की कंप्लायंस की गई, FIR रजिस्टर की गई। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के आधार पर हमारे केस को खारिज कर दिया गया, जबकि सेक्शन 18A में ये स्पष्ट कहा गया है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है, दैट इज नॉट परमिसिबल अंडर दिस एक्ट, इवन इट इज इलीगल। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के नाम पे हमारे सोशल बॉयकॉट केस की जो है कंप्लेंट जो है वो खारिज कर दी गई, डिसमिस कर दी गई। और जब हम हाई कोर्ट में गए पुलिस के इस एक्शन के खिलाफ, इन्होंने हमारी जो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR है वो ना करके इन्होंने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में हमारा केस खारिज कर दिया। तो हाई कोर्ट ने भी इसमें कहा कि कुछ भी हो, इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी थी, चाहे वो प्रिलिमिनरी हो, चाहे आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR हो। आपकी इंक्वायरी हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, और पुलिस ने लिखा है नो केस इज मेड आउट, दैट इज फाइनल। और हाई कोर्ट ने भी हमारी कंप्लेंट को बंद कर दिया। अब जुडिशरी की बायसनेस की बात करें हम, तो भाटला केस में ही हमने 2 केस और रजिस्टर कराए थे, जिसमें हम लोगों ने एक ये केस रजिस्टर कराया था कि भाईचारा कमेटी के 10-12 मेंबर्स के कहने पर गांव के नाई ने हमारे बच्चों के बाल काटने से मना कर दिया, और इन्हीं मेंबर्स के कहने पर गांव के किरियाना के दुकानदार ने हमको किरियाना का सामान देने से मना कर दिया। और सबसे बड़ी बात है, इसमें SC/ST एक्ट की जो स्पेशल कोर्ट है, उस स्पेशल कोर्ट के आदेश के, यानी 156(3) ऑफ CRPC में हमने पिटीशन दायर की स्पेशल कोर्ट के सामने, और कोर्ट ने कहा कि प्राइमा फेसाई केस इज मेड आउट और FIR मस्ट बी रजिस्टर्ड ऑन द कंप्लेंट ऑफ जो विक्टिम्स ऑफ भाटला केस। वो केस रजिस्टर हुआ। केस रजिस्टर होने के बाद 12 लोगों ने एंटीसिपेटरी बेल के लिए हाई कोर्ट में अप्लाई किया। आप इसको ध्यान से सुने। एट्रोसिटी के केस में, सोशल बॉयकॉट के केस में डिजिटल एविडेंस है, जिसमें रिकॉर्डिंग में कहा जा रहा है कि हम आपको सामान नहीं दे सकते, आपके बाल नहीं काट सकते, क्योंकि आपका सोशल बॉयकॉट हुआ है, और अगर हमने बाल काट दिए, किराने का सामान दे दिया, तो हमारे ऊपर 21,000 रुपए का जुर्माना लग जाएगा, दंड लग जाएगा, इसलिए हम नहीं दे सकते आपको सामान, ना बाल काट सकते हैं। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल थी। और इस केस के आरोपी हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए गए, सेशन कोर्ट से हमने खारिज कराई वो।
और आप हाई कोर्ट की मेंटेलिटी देखिए, हाई कोर्ट के जजेस की, मतलब वो लोग 438 ऑफ सीआरपीसी में एप्लीकेशन देते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल दी जाए। अब हाई कोर्ट कहती है कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं, आपको रेगुलर बेल मिलनी चाहिए, और उनको रेगुलर बेल दी जाती है। 438 में रिलीफ मांग रहे हैं, 439 में रिलीफ दे दिया जाता है। अब 439 में रिलीफ देने का क्या रिजल्ट आते हैं? 438 में जब रिलीफ दिया जाता है हाई कोर्ट द्वारा, तो हाई कोर्ट उनको कहते हैं कि आप नीचे जाओ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने प्रेजेंट हो, जांच में शामिल हो जाओ, इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करो। लेकिन हाई कोर्ट ने स्कोप ही खत्म कर दिया, उन्होंने रेगुलर बेल दे दी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के भी सारे रास्ते बंद कर दिए। अब किसी केस में रेगुलर बेल दे दी तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अब आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगा? तो देखिए आप हाई कोर्ट की मेंटेलिटी किस तरह की है, कि किस तरह से एट्रोसिटी के जो आरोपी है उनको फायदा पहुंचाया जाता है। और इस तरह के और भी बहुत इंस्टांस हैं जिसमें जुडिशरी ने डायरेक्टली एट्रोसिटी के विक्टिम्स को फायदा पहुंचाया है। और आप लोगों को याद रखना चाहिए, SC/ST POA एक्ट ओनली ऐसा कानून है जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और वेरियस हाई कोर्ट्स के अगेंस्ट जो कानून है, इसके खिलाफ फैसले आए हैं। अगर आप इसको गूगल पे सर्च करें, अपने लॉ की वेबसाइट पे सर्च करें, तो SC/ST एक्ट के खिलाफ जितने हायर जुडिशरी के फैसले आए हैं, किसी कानून के खिलाफ नहीं आए। कभी कहेंगे कि टेलीफोनिकली बात की तो केस इज नॉट मेट आउट, कभी कहेंगे कि इसमें आप चार दीवारी के अंदर आपको कोई जाति सूचक गाली बकता है, नो केस इज मेड आउट। कभी कहते हैं कि कास्ट का पता होना चाहिए, इंटेंशन मस्ट बी फाइंड आउट। तो इस तरह की जो चीजें हैं केवल SC/ST एक्ट के खिलाफ आ रही हैं और किसी एक्ट के खिलाफ नहीं आती है। ये दोनों केसेस में, मिर्चपुर हिंसा और भाटला केस में आप लॉयर थे, तो आपको कैसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा? आप थोड़ा एलैबोरेट कर सकते हो उस पर? देखिए, मिर्चपुर केस की बात है तो मिर्चपुर केस में ट्रायल के दौरान मैंने आपको पहले बताया कि हिसार की सेशन कोर्ट में जब मेरे विटनेसेस की गवाहियां होनी थी, और बीइंग लॉयर ऑफ कंप्लेनेंट मैं अपने विटनेसेस को समझा रहा था, तो कोर्ट के अंदर ही 300 से 400 की संख्या में खाप पंचायत के मेंबर्स मौजूद थे। जब उन्होंने देखा कि मैं अपने विटनेसेस को समझा रहा हूं, तो उन्होंने पहले तो आके मुझसे अच्छी तरह से बात की, भाई हमारा कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, आप बीच में टांग ना अड़ाएं। मैंने कहा ऐसे कैसे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा? मैंने विटनेसेस से पूछा आपका कॉम्प्रोमाइज हुआ है? तो वो ना तो हाँ बोल रहे थे और ना ही ना बोल रहे थे। मैंने कहा आपने मेरे विटनेसेस को डराया है। तो मेरी ड्यूटी बीइंग लॉयर इनको समझाना है कि इन्होंने कोर्ट में क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, क्या तरीका होता है कोर्ट में गवाही देने का। तो इतना सुनते ही उन्होंने मेरे साथ हाथापाई शुरू कर दी, कपड़े पकड़ने शुरू कर दिए और मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश की। मैंने अंदर जाके जज साहब को बताया। अब जज साहब कहते हैं वकील साहब आपके विटनेसेस को डराया जा रहा है, तो विटनेसेस आके बोले ना मेरे सामने कि हमको डराया जा रहा है, आपके कहने से थोड़ी मानेंगे। मैं जी मेरे को मार पीट रहे हैं, आपको मार पीट रहे हैं, तो आप केस को ट्रांसफर कराओ यहाँ से। सेकेंडली, मिर्चपुर केस में ही जो दिल्ली स्पेशल कोर्ट की जज थी कामिनी लॉ, उन्होंने हमसे कहा कि मैं मिर्चपुर का विजिट करूंगी, जले हुए घरों को देखना चाहूंगी। तो उन्होंने प्रोग्राम बनाया वहां का। तो सबसे पहले वो हाँसी आई जो नियरेस्ट टाउन है मिर्चपुर से। तो हाँसी रेस्ट हाउस में उन्होंने मुझे कहा कि आपको मेरे साथ रहना है कंप्लेनेंट के वकील के तौर पर। आप और जो विक्टिम्स हैं मुझे आइडेंटिफाई कराएंगे कौन कौन से मकान जलाए गए हैं। तो मैं आपको बताऊं, उस टाइम दिल्ली में केस चल रहा था और दिल्ली से कम 50 वकील फ्रॉम द एक्यूज साइड वर प्रेजेंट देयर एट रेस्ट हाउस हाँसी। और कंप्लेनेंट की तरफ से मैं था और एक मेरे साथी श्रीजी भावसर थे। एनीवे हम लोग मिर्चपुर गए,
मिर्चपुर में जब जज साहब गलियों में पैदल चलना शुरू हुए, हम उनके साथ थे, तो जज साहब की प्रेजेंस में सबसे पहले वहां के सीआईडी जो अधिकारी, जो सीआईडी के पुलिस ऑफिसर थे, जब मैं एक एक करके उनको स्पॉट दिखाने लगा जो वायलेंस के, तो पहले तो पुलिस वाले ने मुझसे कहा कि वकील साहब आप है ना यहाँ का माहौल खराब ना करो, आप यहाँ से जाओ। अरे भाई मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरे को करने दो, और मैं कोर्ट की इंस्ट्रक्शन पे कर रहा हूँ। उसके बाद गांव में एक शांति कमेटी बनी हुई थी। अच्छा, जहां भी है ना, मैं आपको एक बताना चाहूंगा, जहां भी मेजर इंसिडेंट होते हैं ना वायलेंस के अगेंस्ट दलित कम्युनिटी, तो उस मामले में जो एक्यूज्ड कम्युनिटी होती है, खासतौर पे जाट कम्युनिटी, वो एक कमेटी बना लेती है। उस कमेटी का नाम बड़ा अच्छा रखा जाता है, बड़ा देखने में बड़ा अच्छा लगता है। अब मिर्चपुर कम्युनिटी में जो मिर्चपुर कांड में जो नाम कमेटी का नाम रखा गया, उसका नाम रखा गया शांति कमेटी। और भाटला में जो कांड हुआ था, उसमें जो नाम रखा गया, उसका नाम रखा गया भाईचारा कमेटी, मतलब भाईचारा मेंटेन करने के लिए बनी हुई कमेटी। मिर्चपुर कमेटी का नाम शांति कमेटी, भाई गांव में शांति बनानी है। अब शांति कमेटी का काम था भाई मिर्चपुर विटनेसेस को तोड़ना, डराना, धमकाना, लालच देना, केस से हॉस्टाइल कराना। अब जब मैं 1 बाय 1 उनको मकान दिखाने लगा, तो वो उन्होंने हमारे वाल्मीकि कम्युनिटी के 5-7 लोग आगे किए हुए थे शांति कमेटी ने, जो ऑलरेडी हॉस्टाइल थे। और शांति कमेटी ने और उन हॉस्टाइल विटनेसेस ने मेरे को धमकाना शुरू कर दिया, वकील साहब यहाँ से चले जाओ, आप गांव का माहौल खराब हो रहा है, दंगा हो रहा है, 2 तो मर चुके, और भी मर जाएंगे तो क्या होगा, आप जिम्मेदार हो क्या, ये है और वो है। तो एक थ्रेट नुमा एडवाइजरी मुझे दी जा रही थी। और जब फिर भी मैं नहीं माना जज साहब को दिखाने से, तो फिर उन्होंने एक एसपी रैंक के अधिकारी थे, उस एसपी रैंक के अधिकारी ने मेरे साथ हाथापाई शुरू की। बोला तू गांव का माहौल खराब कर रहा है, तेरे को देखेंगे। जज के सामने मेरे को उन्होंने कंधे पे धक्के मारने शुरू कर दिए। और इससे पहले कि जज साहब सारे मकानों को देखें, उससे पहले ही एक रूमर स्प्रेड कर दी गई वहां पर कि गांव में दंगा होने वाला है। जज साहब के कानों में ये बात डाल दी गई, और विद इन सेकेंड्स सारे ऑफिसर्स वहां से अपनी अपनी गाड़ियों में भाग गए। इन वो जो जज है वो भी, मतलब धूल सी उठती दिखाई दी, गाड़ियों के चलने की धूल सी उठती दिखाई दी। और सारे के सारे ऑफिसर्स थे, पुलिस जो थी वहां पर, जुडिशियल ऑफिसर थे, वो सब वहां से चले गए। और मैं और मेरा दोस्त श्री जी वहां पर रह गए। और सामने खड़ी थी शांति कमेटी, गांव के जाट कम्युनिटी के मेंबर्स, जो हमारी तरफ लगातार घूर रहे थे और मेरी तरफ टारगेट करके कह रहे थे ये हमारे गांव में दोबारा दंगा कराना चाहता, हमारा समझौता नहीं होने देना चाहता। और वो मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैंने उस श्री जी को कहा, श्री जी यहाँ से भागते हैं, नहीं तो ये हमको हमारी मॉब लिंचिंग कर देंगे। तो वकील साहब हम वहां से भागे, और भीड़ हमारी पीछे थी। जो एक लास्ट गाड़ी थी, उसमें हांसी के सब डिविजनल जो ऑफिसर थे वो थे, वो मेरे को जानते थे। उन्होंने मेरे को देखा और उन्होंने तुरंत अपना गाड़ी रोकी, गनमैन को भेज के हमको फटाफट चलती गाड़ी में चढ़ाया, और वहां से हम इस तरह से जान बचा के भागे। इसी तरह से भाटला में क्या हुआ, भाटला में मैंने बताया था आपको कि हम एक, जो सेशन कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल दे दी थी, उसके खिलाफ रिवीजन में हाई कोर्ट में गए थे। और हाई कोर्ट ने पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को कहा कि इस मामले में जाके मामले को रिजोल्व करो। हाई जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे, एसडीएम वगैरह, उनसे नहीं बात बनी। तो हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा ने हिसार के सेशन जज को कहा कि गांव का विजिट कीजिए अपनी टीम बनाकर, और टीम बनाकर विजिट कीजिए, और दोनों पार्टियों से बात कीजिए, और एक रिपोर्ट हमको हाई कोर्ट में दें। तो 2 सितंबर 2017 को वो टीम आई थी, और वो टीम पहले गांव की जो गुरु रविदास मंदिर है, एससी कम्युनिटी के लोगों से मिली। सेशन जज साहब और 3 एडिशनल सेशन जज साहब और वहां पे उनके साथ थे। बहुत पुलिस बल उनके साथ था, एसएचओ, एसडीएम, ये सारे के सारे। तो
जो हमारा मेन कंप्लेनेंट था उसको तो जानबूझ के एक दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया था एक पेटी मैटर में, ताकि जज के सामने बयान ना दे सके। अब रह गया था मैं मेन आदमी वहां पर। तो जज साहब ने मुझसे कहा कि वकील साहब आप अपने 10 लोगों की कमेटी बनाकर हमको दे दें, हम लोग गांव के मेन स्कूल में बैठे हुए हैं, वहां पर हम जाट कम्युनिटी की और ब्राह्मण कम्युनिटी की जो है एक मीटिंग ले रहे हैं, हम उनकी भी 10 लोगों की टीम बनाएंगे। तो 10 लोग आपके 10 लोग इनके बैठ के आमने सामने बात कराएंगे, उन बात करने के बारे में जो कंक्लूजन निकलेगा वो रिपोर्ट बना के हम हाई कोर्ट में देंगे। आप मुझे स्कूल में जाकर कमेटी की लिस्ट भी दे के जाएं। तो मैंने 10 लोगों की कमेटी की लिस्ट बनाई, जो हमारे समाज के रेपुटेटेड लोग थे, उनकी 10 लोगों की लिस्ट बना के मैं, मेरे एक जूनियर और 2-3 विक्टिम्स, हम लोग बड़े स्कूल में गए। वहां पर 300 के करीब लोग बैठे हुए थे, सामने चारों जज साहब बैठे हुए थे, पुलिस ऑफिसर्स बैठे हुए थे, पुलिस की बसें खड़ी हुई थी भर के। और जैसे ही मैं वो लिस्ट लेके जजों के सामने पहुंचने ही वाला था, तभी मेरे को देख के गांव के जो जाट और ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। जो यंगस्टर्स थे, बोला ये जो है ना हमारे गांव का भाईचारा खराब कर रहा है, ये गांव वालों को भड़का रहा है, दलितों को भड़का रहा है। और वो जजों के सामने मेरे पीछे भागे, और मेरे सामने जजों के सामने मेरे पीछे भाग लिए। अब देखिए, उन 300 लोगों में से 80-90 लोग मेरे पीछे भाग लिए और हम आगे आगे भाग रहे थे। मेरा ड्राइवर तो चाबी फेंक के भाग गया डर के मारे। और वहां पे एक पुलिस ऑफिसर्स थे, पुलिस ऑफिसर ने तुरंत मेरे को रोक के पुलिस को ऑर्डर किए। वो पुलिस ने उनको रोका, भीड़ को, और फिर उसने मेरे को कहा कि आप अपनी चाबी उठाओ और भागो यहाँ से, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं तो वहां से भागा ही भागा, वो चारों जज भी दीवार कूद कूद के वहां से भाग के गए। तो इस तरह की सिचुएशंस में हम लोगों ने काम किया। और इस घटना के बाद मैंने भागते भागते गाड़ी में बैठ के चिट्ठी लिखी, एक लेटर लिखा, कंप्लेंट लिखी, एसपी को व्हाट्सएप किया, एसपी ने सीन किया और मेरी कंप्लेंट पे कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ सेडिशन का, भड़काने का, SC/ST एक्ट के नाम पे एक्सटोर करने का और बड़ी संगीन धाराओं में मेरे खिलाफ केस रजिस्टर कर दिया। पुलिस की 7 टीमें मेरे पीछे लगा दी गई। हम 2 महीने तक अंडरग्राउंड रहे। और वो जज साहब थे वो भी उसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से थे। मेरी बेल को विद स्ट्रिक्चर खारिज किया गया। 3 महीने हम अंडरग्राउंड रहे। अंडरग्राउंड रहने के बाद हमारी एंटीसिपेटरी बेल जो है वो मंजूर हुई और फिर हम घर पर आए। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमको झेलनी पड़ी, इस तरह के सर्कमस्टांसिस में रहना पड़ा। मिर्चपुर केस के दौरान तो मेरे ऊपर अटैक हुआ। मेरे साथ 2 गनमैन थे और दोनों गनमैन लोडेड कार्बाइन के साथ थे। उनकी प्रेजेंस में मेरे सिर में, जो हमलावर थे, मेरे सिर में तलवार मार के भागे और वो गनमैन आ जाऊं खड़े होके देखते रहे बस। उस मामले में हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। 307 में केस रजिस्टर हुआ, अब भी वो केस अंडर ट्रायल है। तो इस तरह के सर्कमस्टांसिस में हमने एट्रोसिटी की लड़ाई लड़ी है और अब भी हालात बहुत खराब हैं। और हरियाणा पुलिस ने जो मुझे मुझे एक, जो हरियाणा पुलिस की एक शाखा होती है, गोपनीय शाखा, उसमें जो टेररिस्ट का रिकॉर्ड होता है, उस टेररिस्ट के रिकॉर्ड में उन्होंने मेरे को लिस्ट किया हुआ है और मेरे को क्लास 3 का अपराधी बनाया हुआ है। क्लास 3 का अपराधी का मतलब जिसके खिलाफ डकैती के, रेप के, मर्डर के और जो मास्केयर के केसेस होते हैं, उन लोगों की लिस्ट में मेरे को डाला हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किन हालातों में हमको यहाँ पर काम करना पड़ता है।